Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 70. As I'll be continuing with the grammatically exercises of lesson 7, The Clever Crab. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 70. I will be continuing with the exercises of lesson 7, The Clever Crab. Students, in my last video, I had explained and written exercise B given on page 70. That is, complete the following table by writing the past and future forms of the following verbs. So let's revise the past and future forms of the given word, students. And after that, I'll be starting with exercise C. So exercise B given on page 70, let's revise it. Complete the following table by writing the past and future forms of the following verbs. The first one, play, is written in simple present tense, and the past tense of, let's revise it on the board so easier for you to learn. Beta, play का past tense is played and the future tense is will play. So, play present tense, played past tense and future tenses will play. Then the second word is run. The past tense is ran and the future tenses will run. In future tense, remember, जो हम present form का verb है वही लिखते हैं, बस उसके पहले क्या लगा देते हैं बेटा? Will. The third is say. The past tense of say is sad and the future tenses will say. Say, sad, will, say. Then the fourth is jump. The past tense is jumped. जंप में हमने ईडी लगा दिया, जैसे प्ले में ईडी लगाया था, जंप में भी क्या ऐड किया? ईडी, तो पास्ट टेंस बन गया. एंड द फ्यूचर टेंसेस will jump. Then the fifth one is catch. Catch का past tense होगा बेटा caught. C-A-U-G-H-T, caught. And the future tenses will catch. Future tense में present form का verb भी रहता है, बस उसके आगे क्या लग जाता है बेटा? Will. Then the sixth one is dance. Dance का past tense is danced. Ed लग गया. And the future tenses will dance. Dance, danced, will dance. Then the seventh is fly. The past tense is flew, F-L-E-W, flew, and the future tenses will fly. Then the eighth one is read. Beta, remember, the spelling is same, but we always pronounce R-E-A-D as read in present tense. ये आपको याद रखना है कि हम R-E-A-D को read pronounce करते हैं present tense में, spelling same रहेगी past tense में, but the pronunciation will change. यहाँ पे present tense में we will pronounce this as read, and in the past tense we will pronounce this as read. R-E-D नहीं, R-E-A-D, spelling same है, R-E-A-D, but pronunciation changes. Read is in present tense and read is in past tense. And then in the future tense it will become will read. So read, read, will read.
और स्पेलिंग सेम रहेगी, READ READ, only the pronunciation will change. So let's revise once again. Play, played, will play. पहला present tense है, दूसरा past tense है, third future tense. Second, run, run, will run. Then say, sat, will say. Then jump, jumped, will jump. Then catch, caught, will catch. Dance, danced, will dance. Fly, flew, will fly. Then read, read, will read. So I hope students, the three tenses are a little bit clear to you. Now students, I'm going to erase this and start with exercise C. Exercise C given on page number 70. And exercise C is fill in the blanks with the suitable form of verbs given in brackets. And the first one is, students, there is a misprint in the word in the first sentence. So all of you please correct it. Beta, always remember, जो first sentence है उसमें sun का S small है, ठीक है? This is incorrect. Make a capital S for sun. Beta, sun का S is always written in capital letters. तो आपके बुक में there's a misprint. Please make that small s capital S for the spelling of sun. Sun's S is always written in capital letters. There are certain words जिसको हम हमेशा capital में लिखते हैं, like G of God, S of sun, SUN वाला sun, E of earth. These are unique things और इनको हम हमेशा capital में ही लिखते हैं. So the sun dash in the east, and the word given in the bracket is rise. Now beta, we need to read the sentence and understand it. The sun dash in the east, rise. अब बेटा sun ईस्ट में राइज करता है, दिस इज अ रेगुलर इवेंट. रोज ही सन कहाँ राइज करता है? ईस्ट में राइज करता है और वेस्ट में सेट करता है. सो दिस इज एन एक्शन विच टेक्स प्लेस रेगुलरली. ये एक एक्शन है जो रेगुलरली टेक प्लेस करता है. जैसे आई ब्रश माई टीथ, तो एवरी डे इन द मॉर्निंग यू ब्रश योर टीथ, दिस इज अ रेगुलर एक्शन. द सन डैश इन द ईस्ट, अब जो सन है वो राइज करेगा एवरी डे इन द ईस्ट, दिस इज अ रेगुलर एक्शन. सो फॉर ऑल द रेगुलर एक्शंस, जो एक्शंस हमेशा रेगुलरली होते हैं वो किस टेंस में लिखे जाते हैं? इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. यू नीड टू कीप इन माइंड actions which happens regularly, they are always written in simple present tense. अब बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक रूल है ना? ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है. यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका जो वर्ब है उसमें एस लगेगा. लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है
तो उसमें वर्ब में एस नहीं लगेगा। ये हमको याद रखना है। दिस इज नोन एज दी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दैट जो सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट कौन होता है? द वन हु डज द एक्शन इन द सेंटेंस। व्हाट इज अ सब्जेक्ट बेटा? सब्जेक्ट वो होता है द वन हु डज और परफॉर्म्स द एक्शन इन द सेंटेंस। अब यहाँ पे द सन डैश इन द ईस्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है? कौन एक्शन करेगा, कौन राइज करेगा? इसमें सन। तो द सन सब्जेक्ट है। अब हमारा सब्जेक्ट सन तो वन ही है ना, वन सन है। तो हम क्या करेंगे? अब वी हैव, दिस इज एन एक्शन विच टेक्स रेगुलरली। इसको हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। तो हम जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस राइज में हम क्या ऐड कर देंगे? एस। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये कौन सा टेंस हो गया बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ आवर सेंटेंसेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। और सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कब यूज करते हैं? टू शो एन एक्शन दैट रेगुलरली टेक्स प्लेस। तो सन तो रोज ही ईस्ट में राइज करता है। दिस इज अ रेगुलर एक्शन। तो इसके लिए हमने कौन सा टेंस राइज को हमने राइज या विल राइज क्यों नहीं किया? बिकॉज ये एक रेगुलर एक्शन है जो रोज होता है ना। जो रोज एक्शन हम करते हैं वो हमेशा हम किस टेंस में बेटा लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो द सेंटेंस विल बी द सन राइजेस इन द ईस्ट। हमने राइज में एस क्यों लगाया? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक रूल है कि अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो आपके वर्ब में एस या ईएस लग जाएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एज इट इज हम वर्ब को लिख देंगे। सो ये आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस ईएस लगेगा इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो एज इट इज लग जाएगा। एंड यहाँ पे सन सब्जेक्ट है सेंटेंस में और सन सिंगुलर है, एक ही है, तो हमने राइज में क्या लगा दिया? एस। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? द सन राइजेस इन द ईस्ट। सो आई होप एवरीबडी हैज रिटन राइजेस इन द फर्स्ट लाइन। और समझ में आया हमने एस क्यों लगाया? वाई? बिकॉज क्यों लगाया एस? क्योंकि ये सेंटेंस एक रेगुलर एक्शन बता रहा है, और रेगुलर एक्शन किस टेंस में हम हमेशा शो करते हैं? इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो काम हम रेगुलरली करते हैं उसको हम हमेशा बेटा किस में शो करेंगे? इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप दिस इज clear to you. Now I am going to erase this and write the second sentence. We dash to the museum okay now we dash to museum on Sunday, और ब्रैकेट में जो वर्ड है बेटा वो क्या है? दैट इज गो। अब बेटा हमको कौन सा टेंस यूज करना है गो के साथ? गो प्रेजेंट टेंस है ना? गो प्रेजेंट टेंस है, और पास्ट में ये क्या हो जाता है? वेंट, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा? विल गो। तो ये गो प्रेजेंट टेंस में है, वेंट पास्ट टेंस में है, और विल गो किस में है? फ्यूचर टेंस में। अब हमारा सेंटेंस क्या बोल रहा है? वी डैश टू म्यूजियम ऑन संडे। हम संडे को म्यूजियम जाएंगे। हम संडे को म्यूजियम जाएंगे, फ्यूचर में जाने वाले हैं, है ना? हम संडे को म्यूजियम जाने वाले हैं, है ना? सो हम इधर कौन सा टेंस यूज करेंगे? फ्यूचर टेंस। तो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब गो एज इट इज आ जाएगा, उसके आगे हम क्या लगा देंगे बेटा? गो।
We will go to museum on Sunday. We will go to museum on Sunday. अगर इधर लास्ट संडे होता तो हम लिखते वी वेंट टू म्यूजियम ऑन लास्ट संडे. डिपेंड करता है कि आपको सेंटेंस में वर्ड खोजना पड़ेगा कि कौन सा टेंस होगा. अब ये है इसमें ऑन संडे अगर खाली वेंट भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, बट विल गो इज मोर अप्रोप्रिएट. फाइन. लास्ट संडे होता तो हम वेंट करते, बट सिंस संडे है तो हम इसको फ्यूचर लेके चलेंगे. So we will go to museum on Sunday. So right will go in the second blank. We will go to museum on Sunday. I hope everybody has written, students. Now I'm going to erase this and write the third one. The third sentence is she dash fruits and vegetables from the market yesterday. And the verb given in the bracket is buy. Buy मतलब खरीदना. Now, she dashed fruits and vegetables from the market yesterday. अब आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस वर्ड पे देना है? इस वर्ड पे, yesterday पे. yesterday का मतलब क्या होता है? the day which is already past, जो बीत गया दिन, जो कल था, उसको yesterday बोलते हैं. और last और yesterday बेटा आप एकदम दिमाग में अपने बैठा लो कि these words indicate past tense. लास्ट हो, लास्ट संडे हो, लास्ट डे हो, है ना, yesterday हो, ये कौन सा टेंस इंडिकेट करते हैं बेटा? पास्ट टेंस. नाउ द वर्ड इज बाय. बाय तो प्रेजेंट टेंस है ना. इसका बाय का पास्ट टेंस क्या होता है बेटा? बॉट. BOUGHT, बॉट. और इसका फ्यूचर टेंस क्या हो जाएगा बेटा? विल बाय. will buy. Buy present tense, BOUGHT, bought past tense, and will buy. Of the sentences, she dashed fruits and vegetables from the market yesterday. Buy का past tense क्या है बेटा? bought. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? bought. और हमने किस वर्ड से पकड़ा कि हमको past tense यूज करना है? किस वर्ड से हमने पकड़ा बेटा कि हमको पास्ट टेंस ही लिखना है? बाय का वर्ड था yesterday. yesterday से हमको समझ में आया कि द डे विच इज ऑलरेडी पास्ट, सो हमें कौन सा टेंस यूज करना है? पास्ट टेंस. और बाय का पास्ट टेंस क्या होता है बेटा? बॉट. BOUGHT, बॉट. जैसे कैट, CATCH, कैच का कॉट होता है CAUGHT, उसी तरह से बाय का होता है BOUGHT, बॉट. सो बाय मतलब खरीदना. तो बाय का पास्ट टेंस बॉट, एंड द सेंटेंस इज शी बॉट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट yesterday. और बेटा कीवर्ड किससे पता चला कि पास्ट टेंस में हमको लिखना है? फ्रॉम द वर्ड yesterday. रिमेंबर, सेंटेंस में लास्ट हो, yesterday हो, ये सारे वर्ड्स इंडिकेट करते हैं बेटा कि हमको किससे वर्ब हमको किस में फॉर्म करना है? इन पास्ट टेंस. सो yesterday था तो तुरंत आपको बाय का पास्ट टेंस बॉट आना चाहिए. उसके लिए आपको
जो पास्ट फॉर्म्स वो लर्न करने पड़ेंगे। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने कुछ पास्ट फॉर्म सीखे, एटलीस्ट यू लर्न दोस 8 पास्ट एंड पास्ट फॉर्म। फ्यूचर फॉर्म तो इजी है कि सेम प्रेजेंट वाला वर्ब रहेगा बट आगे विल लगा देना है, बट पास्ट फॉर्म यू नीड टू लर्न। सो बाय का पास्ट टेंस क्या है बेटा? BOUGHT, बॉट। और किस वर्ड ने इंडिकेट किया कि हमको पास्ट में लिखना है? yesterday. So our sentence will be, she bought fruits and vegetables from the market yesterday. So please write BOUGHT, bought, the past tense of buy. I hope everybody has done, students. Now I'm going to erase this and write the fourth one. Now the first sentence is, cows dash milk. Fine. And the verb given in the bracket is give. Okay. आप ध्यान से देखो सेंटेंस को, cows dash milk, है ना? रोज जो काउ है वो रोज मिल्क देती है, तो एक्शंस विच टेक्स प्लेस रेगुलरली, उनके लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना? तो अब काउस गिव मिल्क रेगुलरली, हम इसमें गिव लिखेंगे। और गिव, जस्ट अ मिनट, गिव प्रेजेंट टेंस में इसका पास्ट टेंस क्या होता है बेटा? गेव। गिव का पास्ट टेंस क्या? gave, and इसका फ्यूचर टेंस will give। ये आपको याद रखना है। give प्रेजेंट फॉर्म है, give पास्ट टेंस and will give फ्यूचर टेंस। अब हमने यहाँ पे give क्यों लिया? क्योंकि cows give milk, ये एक एक्शन है जो रेगुलरली होता है, रोज ही काउ सुबह और शाम मिल्क देती है। दिस एक्शन टेक्स प्लेस रेगुलरली, तो हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक रूल है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब हम एज इट इज लिखेंगे। बट बेटा अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट राइट, जस्ट अंडरस्टैंड, अ काउ होता, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, अगर हम एक काउ के बारे में बात करते तो हम यहाँ पे गिव की जगह क्या लिखते बेटा? गिव्स मिल्क। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब एज इट इज हम रूट फॉर्म में लिख देंगे प्रेजेंट टेंस में। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, हम काउस तो बहुत सारी गाय, मोर देन वन है ना, लेकिन अगर हम एक काउ के बारे में इफ यू आर टॉकिंग, तो हम यहाँ पे जो हमारा वर्ब है उसमें हमने क्या लगा दिया बेटा? एस लगा दिया। सो ये आपको याद रखना है। दिस इज नोन एज दी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये खाली किस टेंस में होता है? इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस का? ये हमारा सब्जेक्ट कौन है? द वन हु परफॉर्म्स द एक्शन, जो एक्शन करता है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट। और हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम एज इट इज वर्ब लिखेंगे, लेकिन हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब में क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। दिस इज द रूल विच यू ऑल नीड टू रिमेंबर। एंड गिव सिंपल प्रेजेंट टेंस, गिव पास्ट टेंस, विल गिव फ्यूचर टेंस। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब में एस लगा देंगे। इन विच टेंस? इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। वेयर एज अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम एज इट इज रूट फॉर्म में वो वर्ब लिख देंगे। गॉट इट? सो आवर सेंटेंस विल बी काउस गिव मिल्क। फाइन। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्यों लिया? बिकॉज टू शो एन एक्शन दैट रेगुलरली टेक्स प्लेस। So I hope this is clear to you. Now the fifth one.
He dash at 6 o'clock tomorrow morning. And the verb given in the bracket is get up. Now, look at the sentence. He dash at 6 o'clock tomorrow morning. अब बेटा इस पूरे सेंटेंस में एक वर्ड है जो आपको इंडिकेट करेगा कि आपको किस टेंस में वर्ब को लिखना है. And the word is tomorrow. जैसे हमने अभी कौन सा सेंटेंस था, थर्ड सेंटेंस में yesterday वर्ड था जिसने इंडिकेट किया कि हमको पास्ट में लिखना है. अब yesterday मीन्स द डे विच इज पास्ट, जो बीत गया है. और टुमारो का मतलब क्या होता है, द डे विच विल कम, जो कल आने वाला है उसको हम टुमारो बोलते हैं. तो टुमारो इंडिकेट करता है कि हमको जो वर्ब है उसको किस टेंस में लिखना है, इन सिंपल फ्यूचर टेंस. और किस वर्ड से हमने पकड़ा है, फ्रॉम द वर्ड टुमारो इन द सेंटेंस. ही सब्जेक्ट है ना. डैश एट 6 o'clock टुमारो मॉर्निंग. और इस सेंटेंस में एक वर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है कि हमको जो हमारा जो वर्ब है उसको किस टेंस में लिखना है, इन सिंपल फ्यूचर टेंस. और वो कौन सा वर्ड है जिसने इंडिकेट किया, टुमारो. बेटा नेक्स्ट हो, नेक्स्ट डे हो, टुमारो हो, ये सारे वर्ड्स दिमाग में रखो, इंडिकेट करते हैं कि हमको जो वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में लिखना है. अब बेटा गेट अप का फ्यूचर टेंस क्या हो जाएगा, एज इट इज वर्ब को रख देंगे और उसके आगे हम क्या लगा देंगे, विल. सो विल, और उसके आगे हम क्या लिख देंगे, गेट अप. क्योंकि जो सिंपल फ्यूचर टेंस में है वो वर्ब एज इट इज लिखते हैं, बस उसके आगे हम क्या लिख देते हैं, विल. सो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही विल गेट अप एट 6 o'clock tomorrow morning. और वो कीवर्ड कौन सा है जिससे हम पकड़ेंगे कि हमको सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखना है, वो वर्ड है टुमारो. टुमारो से हमको पता चला कि हमको ये जो सेंटेंस का जो वर्ब है उसको किस टेंस में लिखना है, इन सिंपल फ्यूचर टेंस. और सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब एज इट इज लिखते हैं, उसके बिफोर में हम क्या लिख देते हैं, विल. सो आवर सेंटेंस इज he will get up at 6 o'clock tomorrow morning. Done? I'm sure everybody must have written will get up, and remember to keep this keyword in mind कि tomorrow हमेशा indicate करता है simple future tense. Now I'm going to erase this and write the sixth sentence. Now the sixth sentence is, the baby dash the first prize at the baby show last Sunday. And the verb given in the bracket is win. Now, win के तीनों फॉर्म्स पहले लिखते हैं. when, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका पास्ट टेंस क्या है, वन, WON, वन पास्ट टेंस. एंड इसका फ्यूचर टेंस क्या है बेटा, विल. विल, विन, वन, विल विन. विन प्रेजेंट टेंस, WON,
इसका प्रोनाउंसिएशन जो ONE1 वाला होता है वही होता है बेटा WON1, है ना। जो हम एक नंबर 1 ONE1 को बोलते हैं, इसको भी हम WN को 1 ही प्रोनाउंस करते हैं। एंड विल विन। अब बेटा, द बेबी डैश द फर्स्ट प्राइज एट द बेबी शो लास्ट संडे। कौन सा वर्ड है? लास्ट। लास्ट वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि ये तो लास्ट संडे मीन्स कि जो संडे बीत गया, दैट मीन्स पास्ट टेंस। इसका मतलब हमको इसमें कौन सा फॉर्म लिखना है विन का? दी पास्ट टेंस, दैट इज 1। और कौन से वर्ड ने इंडिकेट किया पास्ट के लिए? द वर्ड इज लास्ट। सो आवर सेंटेंस विल बी द बेबी won the first prize at the baby show last Sunday। और लास्ट जैसे टुमारो से हमको पता चला फ्यूचर टेंस, उसी तरह से बेटा लास्ट इंडिकेट कर रहा है कि हमको जो वर्ब है उसको किस टेंस में लिखना है? इन दी पास्ट टेंस। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? द बेबी won the first prize at the baby show last Sunday। और लास्ट वर्ड ने इंडिकेट किया कि जो वर्ब का टेंस है वो कौन सा होना चाहिए बेटा? इन पास्ट टेंस। विन का पास्ट क्या है? 1। So we have written. So I hope students, this exercise C of Grammarly tenses is clear to you. Students, please revise all the taught lessons of English Wordsworth Reader and units of English Grammar book as your half yearly exams are approaching. Please work hard and perform well. That's all for today, students. Thank you, students. Have a good day ahead.